So iterable is a interface which contains one method. What is that? Iterator. And that method returns an object of type iterator. Right? Now this iterator is also an interface. Iterator is also an interface which has three methods. As next, इसके बाद रिमूव, ये कुछ मेथड्स हैं और ये कहाँ पर प्रेजेंट है? जावा डॉट यूटिल, ये है आपका जावा डॉट यूटिल पैकेज। जावा डॉट lang पैकेज में। Okay, what is collection? Collection is also interface. Collection is also interface which extends iterable. And collection contains several methods such as add all, remove all, remove multiple elements. Then we have remove if. I hope you have practiced remove if, right? Clear, retain all, और भी methods हैं. Contains all. Then we have search. That is size is empty, और भी बहुत सारी methods हैं. Now list is a interface which extends collection, right, and provide some extra methods. Now when we are going to go with the list, if your requirement is we can store, list का यूज़ करके क्या क्या कर सकते हैं हम? We can store multiple elements. We can store multiple elements which can be of same type or different type. Which can be same type or different type, and elements can be duplicate. And insertion order is maintained. Okay. Now what are the implementations of list implementations? So we have array list, we have linked list, then we have vector, and then we have stack. So yesterday we talked about array list. What is array list? It is a concrete class. It is a and where it is present in java.util package. Java.util package. And it is used to store multiple values as a single unit. Now we can store homogeneous as well as heterogeneous elements. Can we store duplicates? So we can store duplicate elements. Yes, duplicate elements. Yes, we can store null. Yes, we can store any number of null values. Then what is null value? Null मतलब
अ रेफरेंस इज नॉट पॉइंटिंग टू एनीथिंग. अगर आपके पास कोई रेफरेंस वेरिएबल है और वो कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता है तो उस चीज़ को बोला जाता है नल. तो आप चाहते हो कि ये रेफरेंस कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट ना करे, दैट इज नल. इट पॉइंट्स टू नल मीन्स दैट रेफरेंस डज नॉट पॉइंट टू एनी अदर ऑब्जेक्ट. नल मीन्स नथिंग. नल मतलब ये किसी को पॉइंट नहीं करता है. राइट. तो नल रेफरेंस वेरिएबल इज पॉइंटिंग टू एन वैल्यू कॉल्ड एज नल. उसका मतलब होता है वो रेफरेंस कोई भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करता है. सो वी कैन स्टोर एनी नंबर ऑफ नल वैल्यूज. उसके बाद दीज आर दी सम ऑफ द थिंग्स वी टॉक्ड अबाउट. और आपको पता होगा कि इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. इट इज़ ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर. आपको पता होगा कि हर एक क्लास जो कलेक्शन ने दिया है विच रिप्रेजेंट्स अ डेटा स्ट्रक्चर. इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which is built on resizable or growable array data structure. ठीक. How array list works, that also we have talked about. How array list works, कैसे काम करता है. Array list internally maintains an array of object. Once with the default capacity, we'll talk about that. Once the array is full, it will create new array and add the values and copy the content of old array into new. अपेंड का मतलब मैं ऐसे बोलूँ, नया एरे कब क्रिएट होता है पता है? जब एग्जैक्टली आपका एरे फुल होता है तब नया एलिमेंट ऐड हो गया. अभी मतलब अपेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. क्यों? क्योंकि आपका एरे फुल होता है मतलब एलिमेंट ऐड होने से पहले, मतलब एक साइज़ आपको मतलब ऐड करेगा वो, उसके बाद साइज़ उसका हो गया तो वो डायरेक्टली नया एरे क्रिएट करेगा. जैसे -1 साइज़ हो गया मतलब उसका कैपेसिटी से साइज इज -1. इमीडिएटली व्हाट इट इज गोइंग टू डू, एलिमेंट तो ऐड होगा ही, इमीडिएटली इट विल क्रिएट द न्यू एरे एंड कॉपी द कंटेंट ऑफ ओल्ड एरे इनटू न्यू एरे. ऐसा हुआ. राइट. नाउ व्हाट हैपेंस देन, कैपेसिटी कॉन्सेप्ट मैंने देखा था आपको. व्हाट इज कैपेसिटी? व्हाट इज कैपेसिटी इन एरे लिस्ट? Default capacity is 10. It is the length of internal array created. जो इंटरनली एरे क्रिएट होगा उसकी वो लेंथ होता है या साइज बोल सकते हो. एंड वी कैन इंक्रीज, वी कैन कस्टमाइज बोल सकते हो. वी कैन कस्टमाइज द array capacity by specifying the capacity in the array list constructor. array list उसके कंस्ट्रक्टर में आप वैल्यू स्पेसिफाई कर सकते हो कि दिस इज द इनिशियल कैपेसिटी. राइट. नाउ हाउ व्हाट इज द कैपेसिटी इंक्रीज? कैसे कैपेसिटी? न्यू कैपेसिटी विल बी 1.5 times old capacity plus 1. Now we know what are the advantages. What are the advantages of array list? What are the advantages of array list? और यहाँ पर फीचर्स बोल सकते हैं. अभी जो यहाँ पर लिखा है एरे लिस्ट फीचर्स बोल सकते हैं. फीचर्स ऑफ एरे लिस्ट
Now you must know it is not synchronous, it is not thread safe, it is not thread safe. ये क्यों आपको डिफरेंस लगाना है? What are the advantages? Can you tell me what are the advantages of this? Okay. एडवांटेज ये है कि एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन ए sequential manner. So retrieval of element is best. बहुत फास्ट तरीके से मिलेगा आपको. उसके बाद रिट्रीवल आपका ये बेस्ट हो गया. और आपको पता है कि देयर इज़ नो शॉर्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस. आपको जितनी चाहिए उतनी मिल जाएगी. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? इट इज वर्स्ट चॉइस इफ द फ्रिक्वेंट ऑपरेशन, अगर आप बार बार फ्रिक्वेंटली डेटा मैनिपुलेशन करने वाले हो. इट इज वर्स्ट चॉइस इफ द फ्रिक्वेंट ऑपरेशन इज manipulation, as there will be lot of, क्या होगा वहाँ पर? डेटा मैनिपुलेशन. जब भी आप इंसर्ट करते हो डिलीट करते हो, so what will happen? There will be lot of shifting of elements. This is not the best. और यहाँ पर एक और चीज़ है कि देर विल बी लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी. देर विल बी लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ मेमोरी स्पेस. कैसे मेमोरी स्पेस वेस्ट होने वाला है आपका? कैन यू टेल मी? a bigger array, so it is going to create a new capacity array. Just to store one element, it will create a bigger array, so that will be wastage. Okay, so these are the some of the pros, cons, how it is working. और methods, हमने सारे operations on array list क्या क्या हमने परफॉर्म करे अभी तक? add a single element in the list बोल सकते हो या कलेक्शन बोल सकते हो. यहाँ पर आप क्या देते हो? ऐड. और यहाँ पर आप स्पेसिफाई करते हो क्या? ऑब्जेक्ट. दूसरा यहाँ पर आप इंडेक्स भी दे सकते हो. इंडेक्स पहले था या बाद में था? इंडेक्स. ऐड ए सिंगल एलिमेंट इन द कलेक्शन एट स्पेसिफाइड इंडेक्स. उसके बाद ऐड. और यहाँ पर आपने दिया था कलेक्शन. दूसरा कलेक्शन ऐड मल्टीपल वैल्यूज इन द कलेक्शन. मल्टीपल वैल्यूज देते हो एट द एंड. यहाँ पर ऐड ऑल था, ऐड ऑल. और यहाँ पर आपको स्पेसिफाई करना पड़ता है कलेक्शन. ऐड मल्टीपल वैल्यूज एट स्पेसिफाइड इंडेक्स. ये भी देखा था हमने. देन रिमूव मेथड था.
रिमूव, और यहाँ पर आप दे सकते हो रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द collection at a specified index. Then remove all, और यहाँ आपको देना पड़ता है collection. Remove multiple elements the given collection. उसके बाद रिमूव इफ, और यहाँ पर देना पड़ता है प्रेडिकेट टाइप देना पड़ता है. रिमूव एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन बेस्ड ऑन सम कंडीशन और क्राइटेरिया. यहाँ पर था एक रिटेन ऑल, और यहाँ पर देना पड़ता है आपको कलेक्शन. रिमूव ऑल एलिमेंट्स फ्रॉम द कलेक्शन एक्सेप्ट स्पेसिफाइड एलिमेंट्स. मतलब ये छोड़ के, ये वाली कलेक्शन छोड़ के, ये एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे डिलीट कर दो. कीप दीज एंड रिमूव रेस्ट ऑफ द थिंग्स. उसके बाद क्लियर देखा था हमने, क्लियर सिंपल. क्लियर क्या करता है? रिमूव ऑल एलिमेंट फ्रॉम द कलेक्शन, एवरीथिंग. उसके बाद हमने क्या देखा था? इज एम्प्टी, रिटर्न्स ट्रू if the collection is empty, else false. Size returns the size of the collection, that is number of elements present in the collection. ठीक, what else? कौन से मेथड्स देखी थी हमने? सर्च के लिए भी देखा था हमने, कंटेंट्स. Contains return true if the collection contains the यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा. returns true if the collection contains the specified element, else return false, else it will return simple. अगर प्रेजेंट है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स. कंटेन्स ऑल, और यहाँ पर देना पड़ता है कलेक्शन. एग्जाम्पल इसको कैसे समझ सकते हैं? लेट्स से एक 10,000 का लिस्ट है, उसमें से 5 लोग प्रेजेंट है, ये चेक करना है बस. सो उसके लिए रिटर्न्स ट्रू इफ द कलेक्शन कंटेन्स द स्पेसिफाइड कलेक्शन, else it will return false. और कौन सी मेथड्स देखी थी हमने? That's it.
चलो आगे बढ़ते हैं. Let's create a, now can I do this little bit change, list equal to new array list. Can I do this? Parent class reference, child class object. Can I do this? कर सकते हैं इसे? Yes, no? कर सकते कि नहीं? कर सकते हैं? यस नो? अरे एरेलिस का इमीडिएट पेरेंट कौन है? तो पेरेंट क्लास रेफरेंस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते क्या हम? कर सकते हैं राइट? तो फिर शांत क्यों हो आप लोग? अक्षय कर सकते हैं? इनहेरिटेंस केस नंबर 3 आपके ऊपर केस करना पड़ेगा मेरे को 420 का. कर सकते कि नहीं? ये आपको सबको पता है राइट? कर सकते हैं. ओके. नाउ व्हाट आई वांट दिस पर्टिकुलर लिस्ट टू ओनली हैव इंटीजर्स. अभी आप कुछ भी ऐड कर सकते हो. यू कैन ऐड टेक्निकली एनीथिंग. यू कैन ऐड होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, स्ट्रिंग्स, एवरीथिंग. यू कैन ऐड ट्रू फॉल्स, सब कुछ ऐड कर सकते हो. बट आई वांट टू रिस्ट्रिक्ट दैट दिस पर्टिकुलर लिस्ट शुड हैव only integers or only strings or only character. If you want to do that, we use the concept called as generics. So I say integer. Now this particular, when I write this, इसका मतलब होता है your list will have only integer values. Your list will have only integer values. तो आपको compile time error आएगा. So this particular things make sure at the compile time itself ये type safety measure करता है अभी. सो इट विल मेक श्योर आपकी लिस्ट में बस कौन से एलिमेंट्स रहेंगे? इंटीजर टाइप के. अभी आपको यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर आएगा. सिंपल. सो आई हैव दिस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड योर जॉब इज इफ यू सी मोस्ट ऑफ द मेथड्स वी हैव covered. Add करना, remove करना. What are the operations we have seen? Add, remove, search, getting size if it is present or not. अब मुझे क्या करना है? इस पर्टिकुलर लिस्ट को मुझे प्रिंट करना है. तो सबसे पहला ऑप्शन है आपके पास लिस्ट. सो अभी क्या देखने वाले हैं? नेक्स्ट व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू लुक एट? रिट्रीविंग द, बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देना, रिट्रीविंग द लिस्ट एलिमेंट्स. कोई भी कलेक्शन एलिमेंट्स क्या करने वाले हम? कलेक्शन एलिमेंट्स. हाउ टू रिट्रीव द कलेक्शन एलिमेंट्स. तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं. सो उसमें से पहला है आपके पास डायरेक्टली प्रिंट लिस्ट या कलेक्शन. डायरेक्टली प्रिंट द कलेक्शन. एग्जाम्पल अभी प्रिंट कर दिया तो इससे होगा क्या? सारी वैल्यूज हो एक ही लाइन में प्रिंट करके देगा आपको. हंड्रेड, 200, 300, 33. दूसरा ऑप्शन क्या आपके पास? यूजिंग फॉर लूप.
यूजिंग फॉर लूप यूज कर सकते हो आप। कैसे फॉर लूप यूज करोगे आप? सिंपल है फॉर लूप, इंडेक्स विल स्टार्ट फ्रॉम 0। यहाँ पर इंडेक्स क्यों आप 0 से क्यों स्टार्ट होने वाला है इंडेक्स? क्योंकि इंटरली क्या यूज होता है, एरे और लिस्ट डॉट साइज, लिस्ट डॉट साइज। तो आपको क्या करना है, एक एक एलिमेंट एक्सेस करना है। मुझे क्या करना है, एक एक एलिमेंट रीड करना है। सो लिस्ट डॉट गेट, और यहाँ पर देना है आपको इंडेक्स। सो गेट मेथड क्या एक्सेप्ट करती है, इंडेक्स 0 से लेके लेंथ -1 तक। ये आपका दूसरा तरीका है आपके पास। हंड्रेड, 200, 300, 33, 33। दिस इज यूजिंग सेकेंड वे आपका। डायरेक्टली प्रिंटिंग द लिस्ट या कलेक्शन बोल सकते हो। तीसरा ऑप्शन क्या आपके पास, यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर लूप। ये कौन सा फॉर लूप है आपके पास, ट्रेडिशनल फॉर लूप यूजिंग इनहांस फॉर लूप, यूजिंग इनहांस्ड फॉर लूप। तो आप यहाँ पर फॉर ईच भी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, फॉर लूप और फॉर ईच। यहाँ पर देना क्या, आपको मिलने वाला है इंटीजर वैल्यू। तो आप लिखो यहाँ पर इंटीजर टेम्प, कहाँ से मिलने वाला है, लिस्ट में से। तो आप यही यूज़ करो बस, और प्रिंट करो टेम्प यूजिंग ट्रेडिशनल फॉर लूप। यूजिंग इनहांस फॉर लूप। आपका तीसरा तरीका, ठीक। Now there is Java 8 way। Java 8 way क्या करना है आपको, लिस्ट डॉट फॉर ईच लिस्ट। अभी आपको पता चल रहा होगा, लिस्ट डॉट फॉर ईच। क्या किया मैंने, लिस्ट के अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, फॉर ईच। कहाँ पर मेथड प्रेजेंट है ये, डिफ़ॉल्ट मेथड ये कहाँ पर प्रेजेंट है, आपकी इटरेबल में। तो ये सबको प्रेजेंट है। फॉर ईच मेथड वेयर इट इज प्रेजेंट, किधर, इटरेबल। इटरेबल में डिफ़ॉल्ट मेथड है, इसलिए किसी को ओवरराइड, सबको ये बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है। और ये एक्सेप्ट क्या करता है, कंज्यूमर। क्या करता है, एक्सेप्ट कंज्यूमर। अभी आपको पता होगी कि व्हाट इज कंज्यूमर। Consumer is a functional interface. Perfect. And what is the method it accepts? Consumer, आप देखो यहाँ पर क्या करता है, accept। अभी आप क्या कर रहे हो, मुझे इसका सब क्लास क्रिएट करना है। तो इसका सब क्लास क्रिएट करने के लिए, फंक्शनल इंटरफेस का सब क्लास क्रिएट करने के लिए आपके पास क्या क्या तरीका है, व्हाट आर द ऑप्शंस आर देयर टू क्रिएट अ सब क्लास। यस बोलिए। अरे बोलिए, कोई भी फंक्शनल इंटरफेस का सब क्लास कैसे क्रिएट करते हैं? आपके पास ट्रेडिशनल ऑप्शन है,
एनोनिमस क्लास है, लोकल इनर क्लास है, लैम्बडा है और मेथड रेफरेंस भी है। कितने सारे ऑप्शन है आपके पास। नींद आ रहा है क्या? फिर एसी ज़्यादा हो रहा है, क्या हो रहा है? चलो, तो मैं इसके लिए लिख रहा हूँ लैम्बडा एक्सप्रेशन। क्या लिख रहा हूँ मैं? लैम्बडा एक्सप्रेशन। अब ये मेथड कुछ रिटर्न करता है क्या? नो, डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। मेथड का नाम हटा दो। तो एक्सेप्ट क्या करता है? इंटीजर वैल्यू। और उसके साथ आप क्या ऑप्शन है, उस इंटीजर वैल्यू को क्या करना है आपको? प्रिंट करो आप। दैट्स इट। अभी आपने डिफाइन किया, आपने क्या किया? डिफाइन किया। और ये फॉर ईच मेथड क्या एक्सेप्ट करता है? एक्शन या कंज्यूमर टाइप का। और एक उसने क्या लगाया? उसने भी फॉर लूप ही लिया है। उसने क्या किया? हमने पहले फॉर लूप लिया था, उन्होंने भी फॉर लूप लिया, राइट। लेकिन आप लिखने से अच्छा उन्होंने ऑलरेडी लिख के रखा है। और हर टाइम क्या कर रहे हो? जितने एलिमेंट्स है उतने बार वो कौन सी मेथड कॉल कर रहे हैं? आपकी मेथड। कौन सी? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मेथड आपने डिफाइन करी है यहाँ पर। ये क्या है? आपकी एक्सेप्ट मेथड। तो मैं इसको थोड़ा डिबग करता हूँ। देखो यहाँ पर लिस्ट डॉट फॉर ईच कंट्रोल आएगा यहाँ पर, आया। किसने कॉल किया ये? फॉर ईच मेथड। किसने कॉल किया फॉर ईच मेथड को? फॉर ईच मेथड ने, हमने फॉर ईच मेथड को कॉल किया। और फॉर ईच मेथड ने कौन सी मेथड कॉल करी? एक्सेप्ट। कौन सी मेथड? एक्सेप्ट। वो एक्सेप्ट मेथड किधर है अभी? जो जहाँ पर डिबग है आपका। कितने बार कॉल होगी? जितने एलिमेंट्स है उतने बार आपकी एक्सेप्ट मेथड कॉल होगी, ठीक। अब इसको मैंने डायरेक्टली उसको एक साथ लिख दिया, अभी अलग से उसको दिया नहीं। अभी आप क्या कर रहे हो? टेक्निकली आपके मेथड में क्या कर रहे हो आप? प्रिंट ही कर रहे हो ना आप। सो यू आर डिफाइनिंग अ लैम्बडा, और उस पर्टिकुलर मेथड के अंदर आप क्या कर रहे हो? प्रिंट करने का लॉजिक कर रहे हो। तो प्रिंट करने के लिए ऑलरेडी मेथड है ना, कहाँ पर मेथड है? So instead of you writing the lambda once again, can we give the reference of a method which is already there, which can do the job? What is that? What is that? System dot out dot println। ये सब कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, बस आप इतना लिखो और आपका काम बन जाएगा। दिस इज जावा वेट वे। समझे? तो आपको ये कुछ लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं है। डायरेक्टली आप फॉर ईच मेथड कॉल करो और उसको ये पास करो। अभी आपने पास क्या किया? लैम्बडा पास किया। लैम्बडा कौन से टाइप का? कंज्यूमर टाइप का। आपने पास क्या किया उसको? ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप कंज्यूमर। आपने उसको क्या पास किया? कंज्यूमर। और इंटरनली क्या कर रहे हो? 10 बार, जितने सारे एलिमेंट्स है उतने बार वो कंज्यूमर की मेथड कॉल कर रहा है। कौन सी? एक्सेप्ट। कितनी बार? उसने भी फॉर लूप लगाया और एक्सेप्ट मेथड कॉल किया। और एक्सेप्ट मेथड में क्या लॉजिक लिखा है हमने? प्रिंट करने का। और इंस्टेड ऑफ वी राइटिंग द लैम्बडा अगेन, तो हमने क्या कर दिया? बस मेथड को रेफर किया। कौन सी मेथड को? प्रिंटलन मेथड को। और आपको पता होगा कि हम कौन कौन से मेथड का रेफरेंस दे सकते हैं? स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड और कंस्ट्रक्टर का। सो सिस्टम डॉट आउट ये एक रेफरेंस बन गया। रेफरेंस कोलन कोलन मेथड का नाम। दैट्स इट। आई होप यू रिमेंबर दिस। हमने बहुत डिटेल में इसको पढ़ा है, बहुत टाइम दिया इसके लिए। तो ये है आपका जावा 8 का लेटेस्ट। तो मोस्टली मैं यही यूज़ करूँगा। एक लाइन के अंदर आपका पूरा एलिमेंट्स रीड हो जाता है यूजिंग जावा 8V। तो क्या करना पड़ेगा आपको? जो भी लिस्ट होगा, लिस्ट हो या कलेक्शन हो, कलेक्शन कोई भी लिस्ट या कलेक्शन हो, नॉट ओनली लिस्ट, कलेक्शन डॉट फॉर ईच। एंड वेयर इज फॉर ईच मेथड प्रेजेंट? और इसे क्या पास करना है आपको? कंज्यूमर। वेयर इज फॉर ईच मेथड प्रेजेंट? इटरेबल। कहाँ पर? इटरेबल। और फॉर ईच मेथड कैसी मेथड है? डिफॉल्ट मेथड। कैसी मेथड है?
और वो एक्सेप्ट क्या करती है, फॉर ईच मेथड क्या एक्सेप्ट करती है, कंज्यूमर. व्हाट इज कंज्यूमर? सो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज फॉर ईच मेथड? इट इज अ मेथड, इट इज अ डिफॉल्ट मेथड विच इज प्रेजेंट इनसाइड द iterable. एंड व्हाट इट डज, इट सिंपली प्रिंट्स द, प्रिंट करता है या जो भी है, अब क्या करता है वो आइटरेट करता है. फॉर लूप, उसके अंदर भी क्या लिखा है उन्होंने, फॉर लूप. और कौन से टाइप का एलिमेंट एक्सेप्ट करता है वो, फॉर ईच कंज्यूमर. कंज्यूमर क्या है, फंक्शनल इंटरफेस. और उसके अंदर कौन सी मेथड है, मेथड का नाम क्या है, वॉइड एक्सेप्ट. एक्सेप्ट और कोई भी टाइप का एलिमेंट एक्सेप्ट करता है. और उसको ओवरराइड हम कैसे कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मेथड को, यूजिंग ट्रेडिशनल वे, एनोनिमस वे, इनर क्लास वे, लैम्बडा वे एंड मेथड रेफरेंस वे. और वही उसको पास कर दो बस. Now there is one more way. Using cursors such as iterator. और मैंने आपको डे 1 पे, डे 2, नेक्स्ट डे पे आपको बोला था मैंने, हाउ डू वी, व्हाट इज इटरेबल, व्हाट इज इटरेटर, एंड व्हाट इज इटरेटर कंटेनिंग, व्हाट इटरेबल कंटेन्स. नाउ कैन यू टेल मी वेयर इज योर इटरेटर मेथड प्रेजेंट? iterable, it is abstract method, so that must be overridden by someone else. So who is that someone? Everywhere, array list, linked list, vector, stack, hash set, linked hash set, tree set, priority queue, everyone is going to implement that method. Which method? Iterator. And they are going to write the logic for that, and they are going to return which type of element? Iterator. Now what iterator is? Iterator is an interface. So they must have created a subclass of iterator and must have overdone the iterator also. तो आपको एरेलिस के अंदर क्या क्या मिलेगा, आई विल टेल यू. या इन सारे क्लासेस के जितने भी सारे मैंने क्लासेस का नाम लिखा, इन सारे क्लासेस में आपको इटरेटर नाम की मेथड मिलेगी. जो भी कलेक्शन के सब क्लास है सारे कौन सी मेथड मिलेगी उनको? इटरेटर. उसको ओवरराइड किया होगा, उनकी मेथड लिखी होगी. और इटरेटर क्या रिटर्न करता है? इटरेटर. तो इटरेटर का इन सब ने सब क्लास बनाया होगा. सो दे मस्ट हैव क्रिएटेड अ सब क्लास. सो इटरेटर का सब क्लास क्रिएट किया मतलब उसके अंदर उन्होंने मेथड ओवरराइड करी होगी, और फिर वो सब क्लास क्रिएट हुआ होगा, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ होगा, और वो उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किसने रिटर्न किया होगा? इटरेटर मेथड ने. राइट. तो अभी हमें क्या करना है, हमें बस किसका रेफरेंस चाहिए? इटरेटर का. इटरेटर का रेफरेंस कैसे मिलेगा? आप इटरेटर मेथड कॉल करो. इटरेटर मेथड इंटरनली क्या करेगी? इटरेटर का आपको रेफरेंस देगी. और इटरेटर का रेफरेंस कैसे मिलेगा? कोई तो क्लास डिफाइन किया होगा, उस क्लास के अंदर आपको हैज़ नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिमूव मेथड मिली होगी. वो मेथड्स हमें कॉल करनी है बस. मतलब घुमा फिरा के बहुत कुछ करना है. चलो अभी देखते हैं. We'll take it next. ध्यान देना, ये सीख गए तो आपका बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा और मेरा भी थोड़ा. चलो. So I will create a list. I have a list and list of array list. So I'm going to add, कोई भी एलिमेंट चल जाएगा. list dot add, I'm adding some elements. Let's say I will take a list of strings. List of strings. So my list will have only strings. Let's we have Adnan, we have Akshay, we have Omkar, we have Swapnil, we have Rohit, we have Roshni, we have दीपिका. ठीक है. अब मुझे क्या करना है, ये लिस्ट है मेरे पास. आई हैव दिस लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. अब मुझे इसको
आइटरेट करना। अभी लिस्ट में आपने पूरा डाल दिया सारे एलिमेंट्स, अब मुझे इसको एक्सेस करना है। तो आपको क्या करना है, सिंपली लिस्ट डॉट, मैंने आपको बोला इटरेटर मेथड कहाँ पर है, फिर से एक बार लेट्स गो टॉप डाउन। इटरेबल देखो, इटरेबल कंटेन्स अ मेथड कॉल्ड एज इटरेटर। ना इस मेथड को किसने ओवरराइड किया होगा, कलेक्शन तो इंटरफेस है तो उसने कुछ ओवरराइड नहीं किया होगा। फिर लिस्ट भी है, लिस्ट ने भी नहीं किया होगा। फिर किसके पास आया होगा, एरे लिस्ट। सो इट इज इम्प्लीमेंटेड, दिस मेथड इज इम्प्लीमेंटेड बाय एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, हैशसेट, लिंक्ड हैशसेट, ट्री सेट, प्रायोरिटी एवरीवेयर। तो सीधा वहीं पे जाते हैं। और वो रिटर्न क्या करता है, इटरेटर। इटरेटर क्या है, इंटरफेस। क्या मेथड्स है उसके पास, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट और रिमूव। चलते हैं। तो अभी आप देखो लिस्ट डॉट इटरेटर, लिस्ट डॉट, अभी इसको आप एरे लिस्ट भी यूज़ कर सकते, दैट इज़ परफेक्टली फाइन। सो लिस्ट डॉट इटरेटर। तो सीधे सीधा हम आ गए कहाँ पर, कौन से क्लास में हम अभी, एरे लिस्ट। तो एरे लिस्ट क्या रिटर्न, इसने मेथड ओवरराइड करी है, दे हैव रिटर्न अ मेथड इटरेटर दैट रिटर्न्स इटरेटर। और इंटरली उन्होंने क्या किया, न्यू ITR। व्हाट इज ITR, ITR इज अ सब क्लास ऑफ टाइप इटरेटर। और इसके अंदर आपको मेथड्स मिलेगी, क्या क्या है, नेक्स्ट, रिमूव, हैज नेक्स्ट, ये सारी मेथड्स किधर है, ये देखो हैज नेक्स्ट, सारी मेथड किधर है आपके पास, यहाँ पर। जो यहाँ पर ITR क्लास है, ये सारी उसकी मेथड्स, ITR कंस्ट्रक्टर, हैज नेक्स्ट, नेक्स्ट, रिमूव, फॉर ईच रिमेनिंग, चेक फॉर मॉडिफिकेशन, दूसरी कुछ मेथड्स है, दीज आर द मेथड्स। तो आपको जस्ट टू हैव अ लुक, इटरेटर मेथड इज प्रेजेंट इन एरे लिस्ट विच रिटर्न्स अ इटरेटर। एंड इटरेटर रिटर्न करता है मतलब इटरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट। तो इटरेटर टाइप का ऑब्जेक्ट कौन सा है, ITR। व्हाट इज ITR, ITR is a subclass which is created inside the array list. It is a private class and it cannot be accessible outside the class. So ITR class implements iterator. So iterator type का है, तो इसका ऑब्जेक्ट आप बना के भेज सकते हो। तो अभी since this has implemented the interface, उसने ये सारी methods भी override करी, has next, next और remove। अभी यहाँ पर उसने क्या, यहाँ पर कुछ वेरिएबल्स भी उसने मेंटेन किया। कर्सर लास्ट रिटर्न एलिमेंट क्या है, इंडेक्स। कर्सर क्या स्टोर करता है, इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट टू रिटर्न। क्या है कर्सर, कर्सर क्या स्टोर करने वाला है, इंडेक्स ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट टू रिटर्न। और लास्ट रिटर्न क्या करता है, इंडेक्स ऑफ लास्ट एलिमेंट रिटर्न, जो नंबर रिटर्न किया। अभी हैज नेक्स्ट क्या करता है, रिटर्न ट्रू और फॉल्स करता है। कर्सर इज नॉट इक्वल टू साइज। जब तक आपका कर्सर साइज को क्रॉस नहीं करता तब तक वो रिटर्न क्या करेगा, ट्रू। जैसे ही साइज इक्वल टू हो जाएगा, कर्सर है लेट्स से 5, साइज है 5, 5 नॉट इक्वल टू 5, फॉल्स। अब ये कर्सर का वैल्यू किधर चेंज हो रहा है, कर्सर का वैल्यू यहाँ पर चेंज हो रहा है नेक्स्ट मेथड में। सो नेक्स्ट मेथड क्या करता है, इंट आई इक्वल टू कर्सर। तो कर्सर का वैल्यू इनिशियली उन्होंने सेट किया, लेट्स से 0 कंसिडर करो। व्हाट इज कर्सर, यहाँ पर इनिशियली देखो यहाँ पर, और कर्सर कहाँ पर सेट हो रहा है, वेयर इज कर्सर यूज्ड, यहाँ पर कर्सर इसकी वैल्यू सेट करी होगी कहीं ना कहीं। तो देखो यहाँ पर कर्सर इज इक्वल टू i+1। यहाँ पर आपको थोड़ा देखो, ज़्यादा कुछ नहीं आपको बोल रहा हूँ मैं। ये क्या करता है, एलिमेंट डेटा, मतलब जो आपका इंटरनल एरे है उसमें से पहला एलिमेंट लेगा और वो रिटर्न करेगा, और आपका कर्सर बनाएगा ++, काइंड ऑफ ए इंडेक्स। कर्सर मतलब ++ बनाए, तो फिर कर्सर आपका बनेगा नेक्स्ट एलिमेंट, वो एलिमेंट रीड करेगा, फिर ऐसे करते करते लास्ट तक जाएंगे, और लास्ट में आपका कर्सर और आपका साइज दोनों इक्वल हो जाएगा, एंड दैट टाइम इट विल स्टॉप। मतलब ये रिटर्न करेगा फॉल्स।
तो हम क्या करेंगे, लूप में हैज़ नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे, जब तक हैज़ लूप में क्या रखेंगे, हैज़ नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे, जब तक हैज़ नेक्स्ट मेथड रिटर्न ट्रू करता है तब तक हम नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे। नेक्स्ट मेथड कब तक कॉल करेंगे, नेक्स्ट मेथड क्या रिटर्न करने वाला है आपको, एलिमेंट कंटिन्यूसली। और जैसे ही आपका अभी नेक्स्ट मेथड आपने कॉल किया 10 बार, नाउ लेट मी डू दैट, चलो लेट्स कम बैक अगेन। हाँ, ये मुझे रिटर्न क्या करने वाला है, लिस्ट डॉट इटरेटर, इट इज़ गोइंग टू रिटर्न मी अ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप इटरेटर। तो मैं इसको इटरेटर ऐसे कर सकता हूँ, सो इटरेटर इक्वल टू लिस्ट डॉट इटरेटर। अभी इटरेटर रेफरेंस का यूज करके कौन सी मेथड कॉल कर सकते हैं हम, इटरेटर डॉट नेक्स्ट, हैज नेक्स्ट एंड रिमूव। तो अभी यहाँ पर देखो मैं मेथड कॉल कर रहा हूँ इटरेटर डॉट नेक्स्ट, कितने एलिमेंट्स हमारे, 3 4 5 6 7, 7 बार मैंने 3 4 5 6 7 8, देखते क्या होता है, 8 बार मैंने नेक्स्ट मेथड कॉल करा है, कितने बार, क्या हुआ, हाँ 7 ही एलिमेंट है, तो 7 बार तो रिटर्न कर दिया उसने। नेक्स्ट मेथड क्या करता है, इफ़ यू टेक्निकली सी, आपने फर्स्ट टाइम नेक्स्ट मेथड कॉल किया, सॉरी एरे लिस्ट में जाते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट मेथड क्या करता है देखो, आपको फर्स्ट टाइम आपने नेक्स्ट मेथड कॉल किया, उसने एलिमेंट आपको दे दिया और फिर उसका कर्सर क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया, कर्सर काइंड ऑफ इंडेक्स बोल सकते हो, और कर्सर का वैल्यू i+1 हो गया। अब ये एलिमेंट आपको देता रहेगा, एलिमेंट कब तक देगा, जब तक आपके पास उस इंटरनल एरे में एलिमेंट्स हैं। जैसे ही आपको नेक्स्ट इंडेक्स दोगे, आप नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मेथड कॉल करोगे तो क्या करेगा, आपको रिटर्न क्या करेगा, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अभी दूसरी एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, आई एम गोइंग टू कॉल इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट, 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सो व्हाट आई विल डू, बहुत सिंपल सा लॉजिक कर रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ मैं, हैज़ नेक्स्ट कॉल कर रहा हूँ और नेक्स्ट भी कॉल कर रहा हूँ, हैज़ नेक्स्ट कॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट भी कॉल कर रहा हूँ, हैज़ नेक्स्ट कॉल कर रहा हूँ, नेक्स्ट। सिमिलरली वैसे ही मैं हर एक के केस में कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर आपको बस चेक करना है कि आउटपुट कैसे आ रहा है। तो हैज़ नेक्स्ट का काम एक ही है, कर्सर अपडेट कौन कर रहा है, नहीं कर्सर कौन अपडेट कर रहा है, नेक्स्ट मेथड, और हैज़ नेक्स्ट क्या करता है, बस सिंपल कर्सर इज नॉट इक्वल टू साइज। तो कर्सर प्लस प्लस होता रहेगा आपका, कर्सर प्लस प्लस कहाँ पर होने वाला है, नेक्स्ट मेथड में, और हैज़ नेक्स्ट क्या करता है, बस कर्सर और साइज को मैच करता है, जब तक इक्वल नहीं तब तक रिटर्न करेगा ट्रू। जैसे ही इक्वल हो गया मतलब आपने सारे एलिमेंट्स एक्सेस कर लिए, अभी वो रिटर्न क्या करेगा, फॉल्स। आप देख लें कि ना इधर, आई विल जस्ट यहाँ पर ट्रू, अदनान ट्रू 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 ट्रू, और उसके बाद दीपिका के बाद देखो यहाँ पर रिटर्न किया उसने फॉल्स। क्या रिटर्न किया उसने, फॉल्स। फॉल्स मीन्स अभी आपका कर्सर इज नॉट इक्वल टू साइज, लेट से कर्सर का साइज आपका 7 एलिमेंट्स है, 7 इज नॉट इक्वल टू 7, फॉल्स। तो रिटर्न किया उसने फॉल्स, और उसने नेक्स्ट मेथड ने क्या रिटर्न कर दिया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। अभी हम ये बार बार करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू दिस अगेन एंड अगेन। तो हमारा काम क्या है, बस हमको ये लूप में करना है। अभी ये मेरे पास 1000 एलिमेंट है, तो आप 1000 बार थोड़ी ऐसे करोगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू,
So we'll call while iterator dot has next, और आपको हैज नेक्स्ट क्या रिटर्न करने वाला है, बस ट्रू और फॉल्स। आपका अभी कर्सर किधर है, फर्स्ट एलिमेंट पर। कर्सर किधर है, फर्स्ट एलिमेंट पर। अभी कर्सर आपका लेट्स से साइज है 0 और साइज है आपका 7। कर्सर इज एट 0, 0 इज नॉट इक्वल टू 7, ट्रू। अभी यहाँ पर मैं दे दूँ स्टार, क्या आउटपुट आएगा, कर्सर आपका अपडेट नहीं हो रहा। अभी कर्सर कितना आपका, कर्सर 0 ही है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये इन्फिनिटली रन करेगा, ये इन्फिनिटली स्टार। क्यों, क्योंकि आपका कर्सर अभी भी 0 पर ही है। कर्सर किधर है, 0 पर, और साइज कितना, 7। 0 इज नॉट इक्वल टू 7, करेक्ट। ये कब चेंज होगा, जब आप इटरेटर डॉट नेक्स्ट करोगे। तो नेक्स्ट क्या करेगा, आपको एलिमेंट देगा, इट विल रिटर्न द एलिमेंट एंड इट विल मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट एलिमेंट, इट विल डू द कर्सर प्लस प्लस। ये क्या करेगा, कर्सर प्लस प्लस। तो अभी आपको क्या मिलेगा, एलिमेंट्स मिलेंगे और कर्सर आपका आगे आगे जाएगा। देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। हैज नेक्स्ट का बस एक सिंपल चेक है, क्या, ट्रू फॉल्स रिटर्न करना। ट्रू कब रिटर्न करना है, जब एलिमेंट्स है तब। कर्सर क्या है, एक इंडेक्स बोल सकते, जब तक कर्सर आपका चल रहा है मतलब कर्सर इज नॉट इक्वल टू साइज, तब तक एलिमेंट्स है मतलब। और नेक्स्ट मेथड क्या करता है, रिटर्न करेगा एलिमेंट और आपका कर्सर करेगा प्लस प्लस। और लास्ट में क्या करेगा आपका, जब एलिमेंट्स खत्म हो जाएंगे वो बोलेगा अभी रुक जाओ, राइट। अभी यहाँ पर मैं देखो इसको मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ। अभी क्या कर रहा हूँ, इधर मैं लिख रहा हूँ ट्रू। क्या कर रहा हूँ मैं, ट्रू। कितने बार चलेगा, एक्सेप्शन आ गया, रुक गया ना, सारे एलिमेंट्स उसने दे दिए। और फाइनली जब नेक्स्ट एलिमेंट आप फेच करने का ट्राई कर रहे हो तो ये क्या बोल रहा है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो आप यहाँ पर सिंपल सा क्या लिखो, मतलब कब तक कंटिन्यू करना है, जब तक आपके पास एलिमेंट है। एलिमेंट है ये कैसे चेक होगा, हैज नेक्स्ट। तो हैज नेक्स्ट क्या करता है, कर्सर इज नॉट इक्वल टू साइज। तो जब तक आपके पास एलिमेंट है तब तक ये रिटर्न करेगा ट्रू। जैसे एलिमेंट नहीं आएगा, एलिमेंट खत्म हो गए, कर्सर मीट इट रीचेस टू साइज, इट विल स्टॉप, राइट। कर्सर समझ में आ रहा है कंसेप्ट क्या है। सो हाउ डू वी आइटरेट द एलिमेंट्स यूजिंग कर्सर। So we first of all get the reference of iterator, and using that reference we first call the has next. If it returns true we will call next method and this will continue. Next method क्या करेगा, it will return the element and it will move the cursor to the next element. Cursor move करना मतलब index plus plus जैसे करना। Getting this idea? So how do we iterate the elements from the given collection? What are the different ways? पहले डायरेक्ट प्रिंट करो, दूसरा आपका ट्रेडिशनल फॉर लूप है, तीसरा इनहांस फॉर लूप है, चौथा आपके पास जावा 8 वे है यूजिंग फॉर ईच मेथड। वेयर इज फॉर ईच मेथड प्रेजेंट, इटरेबल, इट इज अ डिफॉल्ट मेथड विच एक्सेप्ट्स कंज्यूमर। व्हाट इज कंज्यूमर, फंक्शनल इंटरफेस। व्हाट मेथड इट हैज, एक्सेप्ट। व्हाट इट एक्सेप्ट्स, इट एक्सेप्ट्स एनी टाइप ऑफ डेटा, राइट। तो फॉर ईच मेथड कैसे काम करता है, सो फॉर ईच मेथड को हम कंज्यूमर पास करेंगे। फॉर ईच मेथड जितने सारे एलिमेंट्स है उतने बार वो अंदर लूप चलेगा। फॉर ईच मेथड के अंदर क्या लिखा है, एक लूप। तो लूप में वो कौन सी मेथड कॉल करने वाला है, एक्सेप्ट मेथड, जो हमने इम्प्लीमेंट करी है यूजिंग लैम्बडा लिखो या मेथड रेफरेंस लिखो या ट्रेडिशनल लिखो एनएनएस। तो हमने जो डिफाइन करी एक्सेप्ट मेथड वो कॉल करने वाला है, राइट। तो आपका आधा काम उसने कर दिया, आप बस को आपको क्या करना है, मेथड कॉल करना है। उससे क्या होगा, वो आपको एलिमेंट्स प्रिंट करके देगा। लेकिन प्रिंट करने के लिए आपको क्या देना है उसको, कंज्यूमर। कंज्यूमर कैसे दे सकते हो आप, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, लैम्बडा लिखो या मेथड रेफरेंस लिखो या एनोनिमस क्लास लिखो, आपकी मर्जी, राइट। और उसके बाद कर्सर। So using iterator we can iterate the elements. Iterator का नाम ही इसलिए देखा है, iterator या iterator, using that we iterate the elements from the given collection.
तो हाउ डू वी यूज कर्सर, हाउ डू वी यूज इटरेटर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, iterator, what it is a interface which contains some methods, has next, remove, and iterable contains one method. What is that? Iterator, that returns a iterator. So that method is overridden in all of the collection classes. So that's why iterator method is present in all of the classes. array list में भी है। वो रिटर्न क्या करती है? इटरेटर। तो इटरेटर क्या है? इंटरफेस। तो उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने क्या क्रिएट किया है? सब क्लास ITR। array list में कौन सा क्लास है? ITR। सो ITR implements इटरेटर। ITR implements इटरेटर। उसके अंदर कौन सी मेथड होगी आपके पास? हैज़ नेक्स्ट, रिमूव। तो उसका ऑब्जेक्ट बना के उन्होंने हमें रिटर्न कर दिया। कौन से मेथड ने रिटर्न किया? इटरेटर मेथड ने। तो हम लिस्ट डॉट इटरेटर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिलेगा। सो यूजिंग दैट रेफरेंस वी कॉल विच मेथड्स? हैज़ नेक्स्ट, रिमूव। तो हम हैज़ नेक्स्ट मेथड कॉल करेंगे, हमको ट्रू फॉल्स मिलेगा। हैज़ नेक्स्ट, डू वी हैव द एलिमेंट? इफ इट इज सो इट विल रिटर्न ट्रू, अब नहीं है तो फॉल्स। और नेक्स्ट मेथड क्या करेगा? इट विल रिटर्न द एलिमेंट एंड इट विल मूव द कर्सर टू द नेक्स्ट एलिमेंट। अगर एलिमेंट नहीं है तो वो रिटर्न करे, दैट इज एक्सेप्शन देगा आपको। अगर एक्सेप्शन नहीं, नेक्स्ट मेथड क्या करेगा? अगर आपने 7 एलिमेंट आपके पास, आपने 8 बार मेथड कॉल किया, नेक्स्ट 7 बार दे दिया, लेकिन 8वें बार उसने एक्सेप्शन दे दिया, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन। तो आपको कंटिन्यूस मेथड कॉल करना, नेक्स्ट मेथड कितनी बार कॉल करना है? जितने एलिमेंट है उतने बार। और वो कैसे चेक होगा कितने एलिमेंट्स है उसके ऊपर? आप साइज कॉल कर सकते हो, साइज का यूज़ करके, लेकिन आप वाइल लूप यूज़ करके एक मेथड कॉल कर सकते हो। कौन सी? हैज़ नेक्स्ट मेथड। तो हैज़ नेक्स्ट मेथड क्या करता है? कंटिन्यूसली साइज चेक करता है, साइज और कर्सर। अगर अवेलेबल है, कर्सर इज नॉट मैचिंग द साइज, इट will return true. It will continuously return true. The moment your elements are completed iterating, then your cursor will reach size and it will return the false. और false return होती है आपका लूप हो जाएगा बंद। क्लियर, समझ में आ रहा है? अब ये 5 तरीके आपका काम है उसको परफेक्ट करना। पहले 2 तो आपको बहुत सिंपल है, डायरेक्ट प्रिंट करो, उसमें कुछ है नहीं। फॉर लूप यूज़ करो, इनहांस फॉर लूप करो, तीनों भी एकदम सेट है। बस नया क्या चीज़ है आपका? यूजिंग फॉर ईच और यूजिंग कर्सर्स। इसको सही तरीके से करो, क्योंकि बाकी सारी क्लासेस में भी हमको क्या करना है? वही पढ़ना है, हमको वही पढ़ना है। और एक बार ये आपको आ गया, फिर बाकी कोई भी क्लास में आपको यही यूज़ करना है। समझ में आ रहा है? ओके, नाउ शैल वी मूव फर्दर? चलो, अब नेक्स्ट है, मुझे क्या करना है? अभी एलिमेंट्स हैं उसको सॉर्ट करना है। क्या करना है? हाउ टू सॉर्ट कलेक्शन एलिमेंट्स। तो इसको करने के लिए आपके पास सिंपल है, यूज कलेक्शंस डॉट सॉर्ट मेथड। कलेक्शन डॉट सॉर्ट, सॉर्टिंग बहुत बड़ा टॉपिक है, विल बी कवरिंग दैट। उससे पहले अभी क्या करते हैं, आई विल जस्ट गिव द लिटिल बिट आइडिया सो दैट यू आर रेडी फॉर द नेक्स्ट क्लास। कलेक्शंस डॉट सॉर्ट। अभी पहले तो कलेक्शन क्या है? इंटरफेस। और अभी नया क्या है? कलेक्शंस। पहले तो देखो, कलेक्शन एस नहीं है, ये क्या है? इट इज एन इंटरफेस। एंड व्हाट इज कलेक्शंस? It is a concrete class. It is a concrete class, which is a utility class, present in java util package. अभी इसके अंदर बहुत सारी methods हैं. It contains several methods. So this class contains several methods which are such as search, sort, mean, max, और भी बहुत सारी methods हैं and n number of methods, right?
चलो देखते हैं उसको. What is that? Sorting. So let's say I have this list and I want to sort this list. Okay, I have this list and I want to sort this list. So I will simply say collections. क्या है? Collections dot. अभी देखो यहाँ पर इतनी सारी methods हैं. Max, mean, binary search, copy, empty list, empty set, fill, frequency, n copies, minimum, max, sort, swap. बहुत सारी methods हैं. There are lot of things. तो उसमें से हम देखते हैं अभी sort method. अभी sort इसको देंगे हम list, इसको देंगे हम लिस्ट. और सॉर्टिंग के बाद हम क्या करेंगे, इस लिस्ट को प्रिंट करेंगे. और प्रिंटिंग के लिए मैं गोइंग फॉरवर्ड यूज़ करने वाला हूँ फॉर ईच मेथड, और जिसको पास करना है हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल. तो मेथड रेफरेंस दे रहा हूँ और उसी तरीके से मैं प्रिंट कर रहा हूँ. तो अभी ये सॉर्टिंग हो जाएगा पूरा. इफ यू सी हियर, आर वी एबल टू सॉर्ट दिस? यस. Now similarly, I want to sort integers also. I want to sort integers also. Sort integers. So I'm going to have integers and I will have this list. So I have these numbers and I want to sort this list. Same cheese, you also have all collections dot sort. It will work. It will work. Clear? कैसे sort करते हैं? Now as an assignment, I'm going to give you one topic. So I have a employee. I have a employee and it has several int employee id, private string employee name and private int employee salary, and I will have getter setters. अभी आप यहाँ पर एक चीज़ ये देखो, यहाँ पर आप क्या करते हो, गेटर सेटर जनरेट करते हो, राइट? जनरेट कंस्ट्रक्टर, देन यू नीड कंस्ट्रक्टर्स के बाद गेटर सेटर्स. 2 स्ट्रिंग मेथड चाहिए होगा आपको. Now I have this employee, getter setter and everything. Now what I'm going to do, I will custom list. So I'm going to create a custom list of employees. अब मैं create करने वाला हूँ multiple employees. Employee 1 equal to new employee, ID will be let's say 1. Let's say we have list. I have multiple employees.
are these list of employees which has ID, name and salary. So I'm going to create a list which will have only employees, and I'm going to create this array list. array भी लिख सकते हो, parent भी लिख सकते हो. Now your job is sort employees, collections dot sort, और आपको देना है उसको, हाँ पहले ऐड करना पड़ेगा लिस्ट में. पहले एम्प्लॉय लिस्ट को ऐड करते हैं. एम्प्लॉय लिस्ट डॉट ऐड एम्प्लॉय 1 2 3 4 एंड 5. ये ऐड कर दिया आपने. पहले क्या किया, एम्प्लॉयज़ के 5 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करे, लिस्ट क्रिएट करी और लिस्ट में आपने एलिमेंट्स ऐड कर दिए. और अभी फाइनली मुझे क्या करना है, प्रिंट करना है उनको सॉर्टिंग के बाद. एम्प्लॉय लिस्ट डॉट फॉर ईच सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. अभी इसको रन करूँगा तो आपको एज इट इज़ एलिमेंट्स मिलेंगे. जिस ऑर्डर में मैंने ऐड किए उसी ऑर्डर में मुझे एलिमेंट्स मिलेंगे. नाउ आई वांट टू सॉर्ट द लिस्ट, तो आप यूज़ करोगे कलेक्शंस डॉट सॉर्ट और इसको आप क्या दोगे, एम्प्लॉय लिस्ट. बट ये चलेगा नहीं. कंपाइल टाइम एरर आएगा आपको. अब मुझे बताओ सॉर्टिंग का मतलब क्या होता है. सॉर्ट कैसे करोगे? सॉर्टिंग के लिए पहले तो डेटा सेम टाइप का होना चाहिए. डेटाबेस में ऑफ सेम टाइप, डेटाबेस में ऑफ सेम टाइप. तो एम्प्लॉय डेटा सेम टाइप का है क्या? लिस्ट कंटेन्स सेम टाइप ऑफ डेटा, यस. सो इट कंटेन्स ऑल ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ टाइप एम्प्लॉय. तो सेम टाइप का डेटा है. अभी एम्प्लॉयज़ नंबर्स उसने सॉर्ट कर दिया, नंबर्स असेंडिंग डिसेंडिंग असेंडिंग कर दिया उसने, स्ट्रिंग्स उसने अल्फ़ाबेटिकली कर दिया. लेकिन आपके एम्प्लॉयज़, योर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स, ही डजंट नो हाउ टू सॉर्ट. collections dot sort knows how to sort integers, how to sort strings, characters, जो भी primitive type data है उसको सब पता है. byte, short, int, long, float, double char, boolean, string, उसको पता है ये कैसे सॉर्ट करना है. लेकिन उसको ये पता नहीं कि कस्टम ऑब्जेक्ट्स कैसे सॉर्ट करना है. तो उसको बताना पड़ेगा कि तो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स उसको कैसे सॉर्ट करना है ये उसको पता नहीं है. तो हमें बताना पड़ेगा उसको कि किस बेसिस पे सॉर्ट करना है. एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पर, या एम्प्लॉय नेम के बेसिस पर, या उसकी सैलरी के बेसिस पर. तो किस बेसिस पर हमें ऑब्जेक्ट सॉर्ट करना है ये उसको बताना पड़ेगा. तो ये बताने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जो एम्प्लॉय क्लास है आपका. सो टेक्निकली अभी आप देखोगे सॉर्ट मेथड क्या एक्सेप्ट करता है. सॉर्ट मेथड एक्सेप्ट्स डेटा ऑफ टाइप, कौन से टाइप का, लिस्ट एक्सेप्ट करता है. लेकिन दैट लिस्ट मस्ट बी ऑफ टाइप कंपैरेबल. कौन से टाइप का, कंपैरेबल. तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका एम्प्लॉय क्लास इसको बनाना पड़ेगा कंपैरेबल टाइप का. कंपैरेबल क्या है, एक इंटरफेस. और कौन सी मेथड है यहाँ पर, कंपेयर टू. तो ये क्या कंपैरेबल करने वाले आप, क्या कंपेयर करने वाले आप, एम्प्लॉय. तो इसको बोलो ऐसे, और आप ओवरराइट करो कंपेयर टू मेथड. अभी ये कंपेयर टू मेथड क्या होगा, दो एम्प्लॉय कैसे कंपेयर. कंपेयर टू मेथड इज यूज टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स. अभी कलेक्शन डॉट सॉर्ट इंटरनली क्या करने वाला है, कंपेयर टू मेथड कॉल करेगा टू कंपेयर टू ऑब्जेक्ट्स. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, इनको दोनों को कंपेयर करने के लिए. तो ये आपका पहला एम्प्लॉय. तो दो ऑब्जेक्ट, वन एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट विल कॉल कंपेयर टू अनदर एम्प्लॉय. तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट रहेंगे एम्प्लॉय के, दो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे. कौन कौन से, एम्प्लॉय 1 एंड एम्प्लॉय 2. ऐसे बार बार चेंज होने वाले. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ दिस डॉट एम्प्लॉय आईडी माइनस एम्प्लॉय डॉट
employee ID. I will explain this thing compare to logic. I will explain next class. Comparable comparator हमें सीखना है. अभी के लिए बस just focus on this. और मैं भी रन करता हूँ. और आपके एम्प्लॉय सॉर्ट हो गए बेस्ड ऑन देयर ID 1 2 3 11. Now I want to sort employees based on their salary. तो क्या करना है आपको यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी एम्प्लॉय सैलरी. Now can you see your employees are sorted based on their salary. Now I want to sort employees based on their name. So उसके लिए भी I am just writing the logic. I am going to explain this. This dot employee name माइनस तो नहीं कर सकते आप नेम. आप नेम माइनस कर सकते हो क्या? तो दो स्ट्रिंग कैसे कंपेयर करना है? इंटीजर कंपेयर तो पता है सिंपली. डॉट कंपेयर टू स्ट्रिंग क्लास ने ऑलरेडी उसको ओवरराइड करके रखा है कंपेयर टू मेथड को. सो विल टॉक अबाउट दिस इज लॉन्ग टॉपिक. इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम. अब देखो आपके एम्प्लॉयज़ कैसे सॉर्ट हो गए बेस्ड ऑन देयर नेम. अदनान, ओंकार, रोहित, राहुल, रोहित, स्वप्निल. राइट. सो विल डिस्कस दिस थिंग व्हाट इज कंपेरेबल कंपैरेटर. ये हमने क्यों किया, मेथड क्यों ओवरराइड किया. अभी के लिए इतना समझो. कलेक्शंस डॉट सॉर्ट उसको नहीं पता है कि कस्टम ऑब्जेक्ट्स कैसे सॉर्ट करना है. तो अभी हमने जो किया ये क्यों किया, कलेक्शंस डॉट सॉर्ट को बताया कि आप एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट्स कैसे सॉर्ट करो और यू वांट टू सॉर्ट. तो इसके लिए हमने कंपेयर किया. सॉर्टिंग मतलब कंपेयर करना पड़ता है. अब मेरे पास कुछ नंबर्स हैं, उनको कंपेयर करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ. कौन छोटा है कौन बड़ा है. अगर छोटा है तो उसको वही रखो, बड़ा है तो उसको शिफ्ट करो, स्वैप करो. ये करना पड़ता है आपको. तो इसलिए मैंने यहाँ पर लॉजिक लिखा है. ठीक.